Hello students. In my previous class I have discussed about the packing efficiency of atoms. How these atoms are closely packed in a unit cell or how much the volume is being occupied by these atoms. Now we will discuss about how these unit cell dimensions, that is edge length or the volume of the unit cell or the mass of unit cell, is being determined to calculate the mass of single atom. So first we know that density D is nothing but mass upon volume. So for density of a unit cell, it is nothing but mass of the unit cell upon the volume of unit cell. So we know that volume, since we are dealing with only cubic crystal, हम यहाँ पर इस चैप्टर में केवल क्यूबिक क्रिस्टल कर रहे हैं. So volume of unit cell is nothing but it is A cube, where A is the edge length. Now we have to determine this mass of unit cell. अगर किसी चीज का मास निकालना है तो मास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट. तो यहाँ पर यूनिट सेल में भी आप देखेंगे कि द मास ऑफ यूनिट सेल विल बी एक्चुअली द मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन इट. नाउ हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, उसके अंदर कितने एटम है. सिंस वी आर डिस्कसिंग थ्री यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड face centered cubic. So that is discussed by this m. M is mass of single atom. So it is given by, when we say mass of unit cell, mass of unit cell is equals to number of atoms into mass of single atom, mass of an atom. जो भी हमारा एटम है उसमें किसी भी मेटल का हो या आयन्स का हो. सो व्हेन वी से मास ऑफ यूनिट सेल, इट विल बी नंबर ऑफ एटम्स और आयन्स इनटू मास ऑफ सिंगल एटम. नाउ हाउ टू फाइंड दिस मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम इज नथिंग बट वी से दैट मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. मोलर मास अपॉन Avogadro number. So we will substitute this here. So we overall we can write it as density D is equals to M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Z. Z denotes the number of atoms into M upon A cube. This is the volume and Na. Here D is the density, Z is number of atoms, M is molar mass. M is molar mass of element, A is edge length and Na is the Avogadro number. Knowing any of these parameters, यहाँ पर जो चार पैरामीटर है इनमें से आप कोई भी तीन पैरामीटर, अगर पांच पैरामीटर में से knowing four parameters we can find the fifth parameter. So in your board class definitely questions or numericals will be asked based on this formula. You should know this formula. This is very very important. Now we will discuss some questions related to this numericals based on this formula. You should remember this formula. Yes, I'll just show you how to solve these questions. Okay, take first question. It's given in your book. Silver forms, say silver forms CCP crystal. CCP, अब यहाँ पर याद रखिए CCP और HCP और FCC. So Z is equals to 4. For BCC, Z is equals to 2. For simple cubic, Z is equals to 1. ये आपको हमेशा याद रखना है. It is very very important. ठीक है, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे अकॉर्डिंगली. So we are saying silver, आपके बुक में दिया है एग्जाम्पल.
आप ये वाला एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। सिल्वर फॉर्म्स CCP एंड एक्स-रे स्टडीज, आपके बुक में ये गिवन एग्जाम्पल है, देखिए। Silver forms CCP lattice and X-ray studies of its crystal show that the edge length of its unit cell is 408.6 pm. pm stands for picometer. Now calculate the density. Atomic mass is given 107.9. अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो हमारा D का फॉर्मूला क्या है? D equals to ZM upon AQNA. Now what is Z? क्या बताया है? BCC. It is having CCP lattice. CCP means what? Z is equals to 4. Molar mass silver का 107.9. 107.9. See 107.9 ये आपका ग्राम में है. So इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? We will convert it in kilogram. So -3 हो जाएगा आपका. Then A, edge length. Edge length is given as how much? 408.6 picometer. तो 408.6 पिकोमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। AQ, so Q into Avogadro number is 6.022 into 10⁻23. Now math students will be very easily solve this question, but what about bio students? I hope you won't be easily solving this. या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई से करके कर सकते हैं, या फिर हम इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग से कैसे करेंगे? लॉग 4 की वैल्यू 107.9 की वैल्यू, इसको तो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद 408.6 का लॉग लेके उसको 3 बार, या तो 3 से मल्टीप्लाई या 3 बार, और इसका लॉग लेंगे। तो इन चारों का लॉग लेके ऐड करेंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले से माइनस कर देंगे, एंड दैट आंसर विल कम अराउंड हाउ मच? डेंसिटी विल बी 10.5 ग्राम पर cm क्यूब. इट विल बी ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है। तो इस ढंग से 10.5 इंटू ना, ये तो ग्राम है, अदरवाइज ये जो पावर्स में देखेंगे तो 10.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर अगर सेंटीमीटर में लें तो आप जो वैल्यू दी हुई 107.9 इसको एज इट इज ले लेंगे, इसको 10⁻−10 कर देंगे सेंटीमीटर में जब करेंगे, देन इट विल बी 10.5 ग्राम पर cm क्यूब। आई होप आई मेड इट क्लियर। अनदर क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए, वो देखते हैं हम। उसको मैं पूरा लॉग से सॉल्व करवा दूंगी। Okay, next question. Niobium crystallizes in BCC. BCC में कितने होते हैं एटम्स? 2 एटम स्ट्रक्चर। If density, in this case density यहाँ पर नियोबियम का, नियोबियम BCC structure. So density D is given as 8.55 gram per cm cube. This is the density. Now calculate atomic radius. See, in this case not edge length, we have to find R. R is equals to what? If the atomic mass of niobium, atomic mass means आपका हो जाएगा M. M is given as 93 U. Atomic mass is 93 U. तो अब इसमें से हमें निकालना, आपको R निकालना है। R निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले A चाहिए, और A हम कैसे निकाल सकते हैं? D is equals to ZM by AQNA. Now you know Z is equals to, for BCC, Z is equals to 2. M is given 93. What about Avogadro number? You know, density is given. So we write A cube is equals to ZM by DNA. What is Z? 2. M 93. Density 8.55. And Avogadro number is 6.022 into 10⁻23. अब यहाँ देखिए जो डेंसिटी है, इट इज ग्राम पर cm क्यूब।
Now if I want to convert it, ये जो ग्राम है 93 U, U means atomic mass unit. तो अगर हम इसको चेंज करें, और ये आपका 1 मोल तो ग्राम में ही आता है, ठीक है, तो या तो आप इसको एज इट इज रहने दें, अदरवाइज वी कैन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, या इसमें कन्वर्ट करें तो दिस विल कम अराउंड, वी विल जस्ट मेक इट 10 पावर माइनस 30 ग्राम पर सीएम क्यूब को आप मीटर क्यूब में अगर करेंगे तो ये आपका 10 पावर माइनस 30 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 2 इंटू 93, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब की वैल्यू आपके आएगी, अगेन आप चाहो तो लॉग से सॉल्व कर सकते हो, दिस विल कम अराउंड 3.61 इंटू 10 पावर 7। चलिए मैथ्स वाले यहाँ तक तो ठीक है, कर लेंगे, 3.61 into 10 power 7. Now how will you find A? For A you need to require the cube root. अब इस वैल्यू का आपको क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट तो आप इजीली नहीं ले सकते, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो पावर होता है इस पावर को 3 के मल्टीपल में रखेंगे, सो वी कैन राइट इट एज 36.1 इंटू 10 पावर 6। तो ये जो 10 पावर 6 है इसका क्यूब रूट तो आपका 10 पावर 2 हो जाएगा। अब आपको केवल इस 36.1 का क्यूब रूट लेना है, सो दिस वी कैन फाइंड इट एज बाय टेकिंग लॉग। अब देखिए लॉग से कैसे लेते हैं, सो log of 36.1 it is around 1.5575। सो इसका क्यूब रूट लेना है अगर, तो इसको हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 3 करेंगे तो इट विल कम अराउंड 0.551916। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू है इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे इट विल बी अराउंड 3.305, और ये जो हमारा 10 पावर 6 था इसका क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इंटू 10 पावर 2, सो ये a क्यूब है, तो a क्या हो जाता है 1/3 ऑफ, या इसका 36.1 इंटू 10 पावर 6 पावर 1/3, तो ये लॉग लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो दिस विल बी 3.305 इंटू 10 पावर 2। ये आपका A है। अब आपको बताया था बॉडी सेंटर क्यूब, जो हमारा बॉडी सेंटर ऑफ बॉडी में है, तो इस सिचुएशन में क्या बताया था, जो रेडियस है पूरा आपका बॉडी डायगोनल आया था पैकिंग एफिशिएंसी में, तो वहाँ पर R आया 4R, तो उस केस में 4R is equals to for BCC, 4R is equals to root 3A, or simply R is equals to root 3/4A. We know the value of root 3, 1.732. So 1.